महत्वपूर्ण व्यक्तियों और सफल उद्यमियों की बातचीत की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पहुंचे हैं कुमार प्रिंटर्स के संस्थापक और प्रोप्राइटर मनमोहन कुमार भार्गव के पास और उनके साथ बातों का ये सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनमोहन जी। थैंक यू। मनमोहन कुमार भार्गव आपका नाम है, इसके अलावा भी कोई नाम है? नहीं, जैसे कि कोई घर में किस नाम से आपको बुलाया जाता रहा हो? ऐसा कोई आपकी माँ आपको प्यार से किस नाम से बुलाती रही? वो घर में तो मुन्ना बोलते थे। मुन्ना। तो अभी इस वक्त जब आप मुन्ना सुनते हैं तो कैसा एहसास होता है कि कोई अगर मुन्ना कान में पड़े तो वही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जब आप अपने छोटे थे? और हाँ, घर में मुन्ना ही कहते थे। स्कूल में ग्रैंड मदर वॉज देयर, ग्रैंड फादर वॉज देयर, फादर वॉज देयर, मदर वॉज देयर। अब तो क्योंकि एज का डिफरेंस बहुत हो गया है, अब तो कोई मुन्ना बोलते ही नहीं है। हाँ, कहाँ पे आपका बचपन गुजर रहा था? बचपन हमारा कुछ दिल्ली में गुजरा, कुछ लखनऊ में गुजरा, कुछ 2-4 महीने मथुरा में भी गुजरा, पैदा कहाँ हुए? लखनऊ में। बट वेरी शॉर्टली वी शिफ्टेड टू दिल्ली because father joined some government job in Delhi, but after few years again uh, for some time I had been to Mathura for few months because my grandfather or family knew they were some teacher in Mathura. So it was easy to get admission there and study there. But what happened, I suffered from typhoid, and there was no treatment for typhoid, no medicine. So I was sick for about 8-9 months. At that time they never used to give any chapati or anything to eat except some fruit, something like that. So I was almost in bed for 8-9 months. And when I recovered, even a teacher in the school turned me down. See your face, only then you come. You come next year. This year we won't admit in the school. So that way, that year had gone. So 1 year I did not give exam, so I could not get any promotion. Next day there was no admission. So I wasted 2 years in that period. आपने कहा कि आप लखनऊ में पैदा हुए, तो क्या वहाँ पर आपके पिता लखनऊ में तब काम करते थे, लखनऊ में ही रहते थे? लखनऊ में काम तो शायद नहीं करते थे, वो शायद लखनऊ भार्गव कम्युनिटी जो थी, दे वर वेल स्प्रेड. माई अंकल थे, माई फादर के कज़न, दे वर इन बिजनेस, और भार्गव काफ़ी थे वहाँ पर, तो वहाँ रहे. फिर जब बीमार हुआ तो फादर, आई डोंट नो हाउ, ही जॉइन सम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जॉब इन दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. तो आप लोग लखनऊ में क्या कर रहे थे? आपके पिता लखनऊ में क्या कर रहे थे जब आप पैदा हुए? I don't exactly remember, but I don't exactly remember what he was doing.
but my uncles were there, and so I don't know. They might work. He might be working with him. तो फिर आपकी जब आप छोटेपन की याद करिए तो आप क्या बनना चाहते थे? मैं after that I got admission in Polytechnic school. In Delhi, there was Delhi Polytechnic, Technical High School, and Engineering College in Kashmiri Gate. In one organization, both of them were part of it. One side was the school, higher secondary, one side was engineering college. So I thought I'll get engineering after, but somehow the other family migrated from there also, from Lucknow. स्कूल में incidentally, because of certain reasons, I just in 5th class, that was the first year, I topped in the school. I got scholarship and all that. But after 7, 9, up reaching 9th, 10th class, circumstances changed and I could not get through. So, फिर Lucknow shifted, I think. There, I had not passed any, not even in intermediate, in high school. I had not even matriculate I had done. I could not get. So, actually, we started living with my father's sister. They had a printing press. अभी उस पर जाएंगे जो आपकी बुआ जी की कहानी है, लेकिन जब तक आप पढ़ रहे थे, मैंने आपसे पूछा कि जब आप पढ़ रहे थे तो आप क्या बनना चाहते थे? Basically, that was a school and that was affiliated to engineering. So there was a सपना होता है, ख्वाब होता है कि शायद इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बन जाएंगे. अच्छा, कोई आपके साथ के ऐसे जानने वाले लोग थे, बच्चे थे जो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ गए थे? हाँ, बढ़ गए थे, ऐसे थे. कौन? कौन जैसे कौन, याद कीजिए. नहीं, one in our class there were 2 brothers in one same section. One brother was very intelligent. Still he is a friend of mine. He joined some government organization and became director there. So he is still there. His elder brother was not good at his studies and he died also early. Oh. So that fellow is still there. His all children have gone to Canada. They are staying in Canada, but he is staying in Delhi also. हम लोग मिलते हैं, बात होती है हमारी. He was topper in the class. तो इस तरह से आपने अपने साथ के 1-2 लोगों को देखा कि वो इंजीनियर बन गए, ऐसा हुआ. लेकिन आपकी पढ़ाई तो बीच में ही छूट गई, कहा जाने. कितने क्लास तक आपको यह कहते हैं कि कितने क्लास तक पढ़ने के बाद छूट गई? देखिए, I got in 10th class I failed. 10वीं में आप फेल हो गए? फेल हो गए. क्यों फेल हो गए? स्टडी पूरी नहीं हो पाई. घर में सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे. क्या खराब थे? Father lost his job. अच्छा. And we could not even sustain the day-to-day working, studying. I was
maybe 7th, 8th class, when we did not have proper dress for the school. In December, January, we used to go only in a shirt in heavy winter. So then finally we failed and we went to Lucknow. Because लखनऊ क्यों गए फिर आप लोग? और लखनऊ में क्या था कि वापस फिर लखनऊ जाकर वहाँ सहारा मिल एक सकता तो हमारे फादर के सेकंड कजिन थे. He had very influential in politics, and he had already doing his printing press job, and he was very influential in political circle also. He was very influential. So we went there. इसी बात को अब आप हिंदी में कहिए. मैं तो कुछ समझ नहीं पाया शायद कि आप क्या कहना चाह रहे थे कि आपके जो ग्रैंडफादर, फिर वो आ गई, हमारे ग्रैंडफादर दादा आपके, दादा, हाँ हाँ, हमारे दादा के भाई वो भी डिस्टेंट कजिन थे, लेकिन आपस में उनका रिलेशनशिप थी और उसकी वजह से वो लखनऊ गए. अच्छा. और उन्होंने कोशिश करी कोई जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो कुछ खास हुआ नहीं. तो फिर हम लोग फिर दोबारा दिल्ली आ गए. कितना टाइम रह के? साल 1.5 साल रहे होंगे. मतलब कुछ वहाँ पे जमा नहीं, कुछ जमा नहीं. हाँ हाँ, तो वापस दिल्ली आ गए. फिर दिल्ली मेरे को स्कूल में एक मैंने तो स्कूल ज्वाइन कर लिया. वहाँ पर मैं पढ़ने लगा और हमारे फादर जो थे, पिताजी, उनको कॉरपोरेशन में जॉब मिल गई, तो उन्होंने वहाँ जॉब करनी शुरू कर दी. तो वो उनका कुछ सक्सेस स्टोरी नहीं रही, बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस और सम बैड हैबिट्स. तो वो वहाँ पे भी ज़्यादा सही नहीं रहा. फिर क्या हुआ? फिर अगेन लखनऊ में और भी रिलेशन रहते थे, तो लखनऊ आए हम. लखनऊ में पढ़ाई वढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हुई. फिर अगेन वी ऑल केम बैक टू दिल्ली आ गए वापस. दिल्ली में जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पॉलिटेक्निक स्कूल ज्वाइन कर लिया. उसमें मुझे याद है कि 5th क्लास में से शुरू होता था स्कूल, तो 5th में तो मैंने टॉप किया क्लास में, आई गॉट स्कॉलरशिप. और धीरे धीरे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते गए कि पढ़ाई हमारी नहीं हो सकी, और फिर छोड़ के फिर लखनऊ चले गए. फिर लखनऊ जाके क्या किया? लखनऊ में फादर सर्विस करी. वो तो टूरिंग का काम करते थे, टूरिंग सेल्समैन होते हैं, वो काम करते थे. क्या बेचते थे? उसमें स्कूल कॉलेज में की स्टेशनरी, पढ़ाई की सामान, बेसिकली स्टेशनरी वगैरह स्कूलों के लिए जो स्कूल में काम आती हैं, वो बेचते थे. तब आप क्या करते थे? मैं उस वक्त सर्विस, क्योंकि ग्रेजुएशन भी नहीं था, हाई स्कूल भी पास नहीं किया हुआ था, तो मैंने हमारे जो फादर की सिस्टर थी, उनका प्रिंटिंग प्रेस था,
तो उसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया लखनऊ। लखनऊ में। दैट वाज प्रैक्टिकली स्टार्टिंग ऑन माय वर्किंग कैरियर। तब आपकी उम्र कितनी थी? 17 साल की। तो वहाँ पर 10th का मैंने इम्तिहान वहाँ पर रहकर दिया एंड आई गॉट थ्रू। प्राइवेट दिया मैंने, वो भी बाद में दिया, उसके पहले ही सर्विस कर ली थी। जब फॉर्म भर दिए, जब इम्तिहान होने को होते हैं उसके 2-3 महीने पहले प्राइवेट स्टूडेंट से फॉर्म भरवाते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जब मुझे लगा कि अब तो दिस टाइम हाई टाइम, तो मैंने हाई स्कूल का फॉर्म भर दिया और मैं पास हो गया वहाँ पर। वहाँ मेरे को 30 रुपये महीना मिलता था उस प्रेस में। उसका हमारे जो अंकिल थे, उनका लड़का जो हमारे कज़िन अभी भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो तो खैर उनका तो कोई बिजनेस वगैरह नहीं है। तो वहाँ पर मैंने इम्तिहान दिया प्राइवेट और आई गॉट थ्रू। फिर उसके बाद में मैंने एक शॉप असिस्टेंट का काम, ये बुआ जी वाले प्रेस में क्या करना था, काम क्या करना था? वहाँ तो हेल्पर ही का काम था। कोई बहुत बड़ा प्रेस भी नहीं था उनके यहाँ। तो हमारे जो फूफा जी थे वो हरपारपुर स्टेट झांसी की, वहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट थे वो स्टेट में, और दीवान भी थे महाराजा। वो पढ़े लिखे थे, बड़े वकील थे। तो झांसी की स्टेट से मजिस्ट्रेट रहे, फिर राजा के दीवान भी रहे। तो वो जब स्टेट ख़त्म हो गई 47 में, तो उनके जो फादर थे वो कलकत्ता में रहते थे। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, बम्बारमेंट वगैरह हुआ, तो अंग्रेज़ लोग तो छोड़ के भाग गए प्रेस, और उनको थ्रो अवे प्राइस में उन्होंने ख़रीद लिया। और जो हमारे फूफा जी थे, उनके लड़के बड़े वाले, जब उनकी नौकरी ख़त्म हुई हरपालपुर स्टेट से, तो वो प्रेस कलकत्ता में बंद किया हुआ था, तो वो उन्होंने लखनऊ भेज दिया कि भैया ये प्रेस ले ले, प्रेस चला दूँ। उन्होंने चलाया, उनसे भी कोई खास चला नहीं, उनको भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थे वो बस वो क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट में महाराजा के यहाँ नौकरी करी, तो कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। नहीं, फिर भी प्रेस चलाया। हम भी जाते थे, देखते थे गर्मियों की छुट्टियों में भी, तो लग जाते थे कि उनका एक लड़का जो था वो मेरे बराबर ही है, तकरीबन 3-4 महीने छोटा है मेरे से। तो हम लोग स्टिल वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, अभी भी टेलीफोन बात होती रहती है। तो उसके बाद में कोई फिर पास नहीं हुए, फिर एक शॉप पे नौकरी कर ली। अभी रुकिए, ये जो बुआ जी वाले प्रेस में कितना टाइम किया आपने काम? 1.5 साल किया हो। 1.5 साल। और जो आप कह रहे हैं हेल्परी का जो काम था, कोई तो ऐसी चीज़ उस प्रेस में रही होगी जिसने तो आपको बाद में प्रेस की ही दुनिया में आपकी यात्रा, यानी प्रेस की दुनिया में कोई एक फैसिनेटिंग चीज़ क्या बुआ जी के प्रेस में ही, उसकी कोई खुशबू, उसमें काम करने का कोई फैसिनेशन, कोई चीज़ थी जो आपको आखिरकार प्रिंटिंग और प्रेसों की दुनिया में ही 70 साल तक घुमाती रही? नहीं, एक तो हमारा जो कज़न ब्रदर है, हम लोग उस टाइम भी वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो प्रेस में दोनों जने साथ साथ काम करते रहते थे, मैनेज करते रहते थे। और हम लोग काफ़ी चम थे, तो अब करते रहते थे। बीच में फिर उसी ड्यूरेशन में हमने हाई स्कूल प्राइवेट दे के पास कर लिया।
प्रिंटिंग प्रेस में जो आप कर रहे थे बुआ जी की प्रेस में, उसमें कुछ मज़ा आ रहा था? प्रिंटिंग प्रेस में उस वक्त तो मज़ा आता है, लेकिन असली जो हमें प्रिंटिंग प्रेस में लगा वो, वहाँ तो काम करते ही थे हम, लेकिन ख़ास कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। लेकिन जब दिल्ली आए यहाँ पर तो भार्गव लोगों के प्रेस थे, लखनऊ में भी थे, लखनऊ से हम दिल्ली आ गए। और दिल्ली में क्या है कि वहाँ पर हम काम तो किया, लेकिन हमको स्कोप नज़र नहीं आया। कुछ क्या बुआ जी से खटपट भी कुछ हो गई थी? कुछ खटपट भी हुई क्या थोड़ी। वजह थी उसकी, क्या वजह रही? देखिए क्या हुआ है, फैक्ट सुनाता हूँ आपको। कि हम दोनों ने, उन्होंने तो रेगुलर यूनिवर्सिटी का इम्तहान दिया, हम यूनिवर्सिटी जाते जरूर थे 2 घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट काम कर करा के अपना काम कर लेते थे। और हमने बीए पास किया, उन्होंने बीएससी पास किया। और उस सेम डे कन्वोकेशन था, उनको डिग्री लेनी थी बीएससी की, हमें बीए की लेनी थी। तो और साथ साथ पढ़ते थे वो तो हमको तनख्वाह भी पता नहीं 80 रुपया कुछ मिलती थी वहाँ। तो जब कन्वोकेशन था तो वो तो क्या है, हमारी बुआ जी एक लड़का, वो तो नीचे प्रेस था उनका, वो तो उनकी फैमिली, एक्चुअली फैमिली का जॉइंट प्रॉपर्टी थी वो, उनका प्रेस तो नीचे था, ऊपर रहते थे। ऊपर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, 2 कमरे रहने के फर्स्ट फ्लोर पे थे और 1 कमरा सेकंड फ्लोर पे था। तो फिर हम और किराए के एक मकान कमरे में रहने लगे थे। हम लोग 10-12 जने एक कमरे में रहते थे, इसका आधा हुआ वो। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, फादर, सब लोग रहते थे। तो उस दिन मैं, क्योंकि वो तो प्रेस नीचे था, तो नीचे आके काम करते रहे। जब कन्वोकेशन का टाइम हो गया, यूनिवर्सिटी पहुंच गए। मैं उस दिन काम पर नहीं गया, प्रेस में नहीं गया काम पर। अच्छा, हम लोगों का क्या था, हम दोनों जने, जैसे यहाँ कैनॉट प्लेस है, लखनऊ में हजरतगंज है घूमने के लिए शाम को, तो हम लोग रोज़ शाम को, मतलब बड़ा मज़ेदार सीक्वेंस है। एक ही साइकिल थी, मेरे पास थी नहीं, उनके पास साइकिल थी, तो हम एक ही साइकिल पे घूमने के लिए हजरतगंज जाया करते थे रोज़ शाम को। और क्योंकि उसका कद थोड़ा छोटा था, छोटा है अभी भी रहा था, तो वो तो आगे बैठते थे साइकिल पे और मैं चलाता था। तो शाम को जब हम घूमने के लिए निकले उस दिन डिग्री लाके, तो हम तो काम पे गए नहीं थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी दी थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा नौकरी करते थे इसीलिए आज काम पर नहीं आए, जबकि हम घर समझ के काम करते थे। तो वो बात हमको बड़ी चुभ गई। हमने कहा तो हमने तो कभी नौकरी की सोची नहीं, हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, घर की तरह काम करते थे। तो उसी सेकंड, मिनट भी नहीं, डिसाइड कर लिया हमने अब काम नहीं करना है। और इसके बाद और बात हुई, उसने हमारे और भी रिलेशन थे जिनके प्रेस था, हमने उनको बोला कि भाई हमारा इंतज़ाम कर दिए दिल्ली में कहीं। प्रिंटिंग प्रेस का कोई ख़ास तो नहीं था, लेकिन फिर भी एंट्री थी, मशीन पहचानते थे, ये था। तो वो बात हमारी बुआ को ये लग गई कि ये जाना चाह रहा है, और उनको भी पता लग गई। तो हमारी बुआ को इतना नागवार गुजरा मेरा वहाँ छोड़ना,
तो उस वक्त मुझे 100 रुपये मिलते थे तनख्वाह के। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है भी। हमारी बुआ, हम लोग मकान में रहते थे, नीचे जीना था और साइड में कमरे में हम लोग रहते थे सब फैमिली। तो बुआ कहने लगी हम तो 100 रुपये देते थे और दूसरा कोई 50 रुपये भी नहीं देगा। ये बात उन्होंने कही। हमने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। वो हमारी ग्रैंड मदर से सब लोगों से कह गई घर पे आके। और हमने अगले ही दिन शायद लखनऊ का अपना टिकट, दिल्ली का टिकट ले लिया। एक प्रेस रेफरेंस ले लिया था हमारे और रिश्तेदार थे लखनऊ जिनके प्रेस थे। तो एक दो प्रेस होगा, तो एक प्रेस में हमने ज्वाइन किया। तो काम तो हमको खास आता नहीं था, तो एक प्रेस वाले ने हमको जॉब दे दिया और 15 दिन उसने काम हमसे करवाया और कह दिया भाई आपको काम नहीं आता, आप काम नहीं कर सकते। लेकिन 15 दिन के काम करने के उन्होंने उस वक्त हमको 75 रुपये दे दिए। और लखनऊ से हम 20 रुपये नहीं लेकर आए थे, भाई होटल में खाना है, सारा करना है। फिर भी हमको 10-15 दिन का हमारा महीने भर का गुजारे, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। फिर इतने में ही किसी के रेफरेंस से एक भार्गव साहब का प्रेस था दरेगंज में, काफ़ी अच्छा नाम था उनका। तो उन्होंने हमको वहाँ भेज दिया। लेकिन हमने थोड़ा सा पिकअप कर लिया था, बारीक पॉइंट जो काम करने के थे वो पिकअप कर लिया था। तो हम वहाँ पर काम करते रहे उनके प्रेस में। तो उनके प्रेस में हमने काम किया होगा कोई 3-4 महीने, 3 महीने किया होगा। तो हुआ क्या, उनके प्रेस में काम बहुत करना पड़ता था कंटिन्यूसली। आज जैसे मैं गया सवेरे, दिन की शिफ्ट में काम किया, रात के शिफ्ट में काम किया, अगले दिन कंटिन्यूसली काम किया और फिर सोने के लिए चले जाते थे एक दिन। मतलब महीने में 15 दिन सोते थे और 15 दिन काम करते थे। और काम क्या था? वही प्रिंटिंग के सुपरविजन का पिकअप कर लिया था हमने थोड़ा सा, क्या? कि प्रिंटिंग कैसे हो रही है, कैसे होती है। और कुछ हमने पता नहीं कैसे हम सीख लिया। क्वालिटी के लिए हमारी एनलाइनमेंट हो गया कि काम ये ठीक छप रहा है, नहीं छप रहा है, ये ठीक है नहीं है। तो हमने इस तरह से वहाँ 2 महीने काम किया होगा। फिर फैमिली लखनऊ में रहती थी। छुट्टी के लेके हम गए 3-4 दिन की, तो हम बीमार हो गए हम। एक बड़ा इंसिडेंट है, मज़ेदार कहानी है। तो वहाँ जाके हम 2-3 दिन ज़्यादा बीमार हो गए। जब लौट के आए तो छुट्टी जो हमने 3-4 दिन के लिए गए थे वो आज 6 दिन की हो गई। वही भार्गव भी थे, उन्होंने बुलाया थे, तो काम करना है नहीं करना है? मैंने कहा जी मर्जी है आपकी। तो उन्होंने इनसे कहा कि इनकी अपने अकाउंट के बारे में बोला कि इनकी पहली तारीख को हिसाब कर दो। 7-8-10 दिन बाकी थे। हमने कहा ठीक है चलो पहले तक ढूंढ लेते हैं कोई और। अच्छा, तो उन्होंने 31 को बुलाया। तो अब आदमी तो उस वक्त भी नहीं मिलते थे मेहनती और जो इतना काम कर ले। तो उन्होंने बुलाया, तेरी मर्जी क्या है? मैंने कहा जी जो जैसी आपकी है। तो उन्हें अकाउंटेंट को बोल दिया नहीं इनको तनख्वाह नहीं देनी, तनख्वाह मत दो इनको, तनख्वाह नहीं दी उन्होंने। हमने इन दी मीन वाइल जब ये बात हो रहा था, हमने चांद से अखबार में निकला था दिल्ली प्रेस, वो हमने अप्लाई कर दिया सुपरवाइज़र के लिए। और वहाँ से इंटरव्यू की हमारी कॉल आ गई सुपरवाइज़र। और उन्होंने तनख्वाह नहीं दी हमारी, हालांकि भार्गव ही हैं वो भी, एशिया प्रेस वाले। और बीच में उन्होंने बंगला खरीद लिया दिल्ली में, ये सब काम किए उन्होंने। लेकिन बाद में उनका कुछ बिजनेस ऐसा गड़बड़ हुआ कि उनका बिजनेस ख़त्म हो गया। अच्छा, हमने इन दी मीनवाइल दिल्ली प्रेस ज्वाइन कर लिया 2 शुरू महीने पे। उस वक्त हमारी उम्र अब होगी
कुछ 24 की 24 साल की थी, 23 साल की, 24 साल की। तो हमने ज्वाइन किया, तो एज सुपरवाइज़र उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया। दिल्ली प्रेस सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हमारी। हमने दिल्ली प्रेस में काम करना शुरू किया, मेहनत करी, और पहले ही साल में एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री का नेशनल अवार्ड हुआ करता। जो अच्छा काम करते थे प्रेस, उनको मिला करता था। तो हम दिल्ली प्रेस गए, हमने थोड़ा बहुत पिकअप कर लिया था कि भाई ऐसे प्रिंट करो तो प्रिंटिंग ठीक हो जाती है, ये ठीक है, ये नहीं, थोड़ी इनिशियल बहुत। तो हमने वो पकड़ा, और दिल्ली प्रेस दिल्ली में मशहूर था। वो अपनी मैगज़ीन छापा करते, सरिता, कैरवान, मुक्ता, चंपा, वो छापा करते थे। तो पहले ही साल हमने मैगज़ीन भेजी, तो उसमें अवार्ड मिला, छपाई का नेशनल अवार्ड। और 6 महीने के अंदर ही हमारी तनख्वाह 200 रुपये से 350 रुपये हो गई। उस वक्त 63 की बात है, 64 की। तो 200 रुपये से 120 रुपये एकदम बढ़ जाएँ उस वक्त के ज़माने में, तो बहुत मायने रखते। और हमें उन्होंने प्रोडक्शन मैनेजर ही बना दिया। हमने और जी जान से काम किया, वहाँ पे भी कोई 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करने शुरू किया। अच्छा, जब वो नेशनल अवार्ड का लेटर आया, तो मालिकों के नाम ही आता था, ओनर्स के। तो उन्होंने वो हम लेटर आया कि आपको इस पब्लिकेशन के ऊपर नेशनल अवार्ड मिला है। तो एमडी ने उसी लेटर के ऊपर, तब तक हम वहाँ सेल्स भी देखने लगे थे, प्रोडक्शन भी देखने लगे थे, ये दिल्ली प्रेस में। और जब वो आया तो उन्होंने हमको मार्क कर दिया कि द पर्सन हु हैज़ डन द जॉब विल गो एंड रिसीव द अवार्ड। मुझे ज्वाइन किए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, गए, अवार्ड लिया, वहाँ काम किया हमने। 1 साल बाद उन्होंने हमको मैनेजर बना दिया, 25 साल की उम्र में। और हमने भी उसी मेहनत से काम किया, तो वहाँ काफ़ी एप्रिसिएशन मिला। और उनके लड़के जो थे वो हमारे इतने अच्छे दोस्त हो गए। एक बड़ा लड़का तो उनका लेटेस्ट नौकरी छोड़ने के बाद हमने फिर अपना प्रेस लगा लिया, मशीन ले ली इंस्टॉलमेंट पे, कुछ ऐसे करके प्रेस लगा लिया। तो एक दिन उनका जो लड़का था वो अपना दोस्त बन गया, अपने बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, बस 15 साल छोटा होगा। तो अपने फादर से मिलवाने ले गया दिल्ली प्रेस। उनके जो मालिक थे वो हमारे टाइम पे, तो उन्होंने अप्रिशिएशन में कहा, मिस्टर भार्गव, यू हैव डन वेरी वेल, छोड़ देंगे 3 साल बाद। तब तक मैंने अपनी बढ़िया एक मशीन लगा ली थी इंस्टॉलमेंट पे लेकर, इंस्टॉलमेंट में मिल जाती थी। वहाँ से फिर हमारा बिजनेस काम करने का सिलसिला चल गया, इंडिपेंडेंट। हमारे 2-3 कुछ उसूल थे बिजनेस में। कभी हमने किसी के साथ किसी तरह की चीटिंग या गलत काम नहीं किया, किसी के साथ नहीं किया। और बड़े फेयर रहते थे अपने स्टाफ के साथ भी, वर्कर के साथ भी, और अपने कस्टमर के साथ भी, अपने सप्लायर के साथ भी। आज भी ऐसे हैं कि जो 50-50 साल से हमारे साथ हैं, और वर्कर भी हमारे ऐसे 30-32, 35 साल से
हमारे साथ काम कर रहे हैं। अभी दिवाली पे, अभी गई है दिवाली थोड़े दिन पहले, हमारे यहाँ दिवाली पे वर्कर्स बुला के इनाम देते। तो 28 साल, 30 साल, 32 साल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल्ली प्रेस से ही मैं जुड़ा था। दिल्ली प्रेस हमारे ऑल इंडिया भारत की बॉडी है, ये है तो बहुत पुरानी, लेकिन हमारे टाइम में इसमें भी बहुत डेवलपमेंट हुआ, इनिशिएटिवली, मैन सिंसियरली। तो उसकी भी मैंने काफ़ी डेवलप किया उसको। दिल्ली भार्गव सभा, ऑल इंडिया भार्गव सभा, इसको भी, इसकी भी कहानी है, कैसे मैंने डेवलप किया, कैसे एसोसिएट बने, कैसे जो उनके पास 100-200 रुपये नहीं होते थे, अब करोड़ों रुपये साल की इनकम है। अच्छा, उस भार्गव सभा की जो कहानी है उस पर तो अभी करेंगे बात। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी टाइम आप लगाते थे, जहाँ जहाँ भी नौकरियाँ आपको इधर दिल्ली में मिली। 8 घंटे की ड्यूटी है तो 16 घंटे भी कर रहे हैं, 18 घंटे भी कर रहे हैं, कभी 24 घंटे भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे? मतलब बहुत पैसे की ज़रूरत थी, क्या था? मतलब भूख? पैसे की कॉन्शियसनेस तो उस वक्त नहीं थी, लेकिन उनको जुनून था काम करने का, कुछ करने का। भाई, एक काम करते हैं तो दूसरे की कीमत पर कर रहे थे आप। अगर आप देखें, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 घंटे अगर काम को दे दिए तो आपकी फैमिली लाइफ तो एक तरह से इग्नोर्ड हो गई ना आपकी तरफ से। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करते हैं ना, कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करनी पड़ती है ना। वो देखिए, एक टाइम तक तो वो सेक्रीफाइस कही जाती है, दूसरे एक टाइम के बाद वो आदत बन जाती है। आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं, देखिए, आदत तो ऐसी बात नहीं है। लोगों को सताना, अपने ही परिवार के, अपनी पत्नी को सताना, सताना मतलब ऐसे नहीं, आप नहीं उनसे मिल रहे हैं, उनको समय नहीं दे रहे हैं। देखिए, सेक्रीफाइस तो होनी, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है लाइफ में। अब हमारे छोटे भाई थे, बहन थे, हमारे दादी थी, हमारे दादाजी भी थे, फादर भी थे, मदर भी थी। वो फादर तो बहुत सालों से नहीं, नौकरी नहीं कर रहे थे। ग्रैंडफादर तो मैनेजर थे बैंक में, वो भी किसी वजह से नहीं कर पाए नौकरी। तो अब इतनी बड़ी फैमिली और नौकरी करने वाला एक जना होगा तो क्या होगा, उसे तो मेहनत करनी पड़ेगी। और तरक्की का काम में सिर्फ मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना, ये 2 चीज़ें हैं, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। भाई, आपने काम सीखा, तो मेहनत के लिए, देखिए, कोई करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस कर दिया और कुछ पैसा कमा लिया, फिर क्या किया? फिर ये भी तो सोचना होता है कि जिस खुशी के लिए पैसे कमाए जा रहे थे, वो खुशी ज़िंदगी में आई कि नहीं आई? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो खाली पैसा ही नहीं होता, खाली अब जैसे मैंने कम्युनिटी, हमारी भार्गव सभा 130 साल पुरानी है, और मेरे सामने जहाँ करोड़ों रुपए की इनकम है, मेरे सामने कोई इनकम ही नहीं थी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे टाइम में जब मैंने भारत, थोड़ा सा कोई खास चार्ज नहीं लिया, जिम्मेदारी कुछ नहीं ली, लेकिन मैं सोचा कि भारत का कुछ होता है यहाँ पर। तो
एक दफ़ा ये पहले कॉन्फ्रेंस में भारत साथ पैसे नहीं होते थे, कहने को तो ऑल इंडिया बॉडी थी, लेकिन ठहरने का इंतजाम कुछ नहीं कर सकते थे, खाने पीने का कुछ नहीं कर सकते थे। भारत सभा तो एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस थी, हमने कहा देख के आए क्या हो रहा है। तो हम 10 बजे रात को उस वक्त तक गाड़ी हमने ले ली थी, तो हम दरियागंज गए। दरियागंज गए तो पहले जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो चैरिटी वालों को फ्री में मिल जाते थे। तो 2 बुजुर्गवार एक कमरे में सो रहे हैं और बिस्तर अपने लाते थे पहले, अब कोई लाता तो सब होटल में ठहरते थे। तो 2 साहब बिस्तर पे होल्ड होल जो होता है ना उसमें रजाई वो खोल के निकाल ली और रजाई ओढ़ के बैठे हुए ऐसे रात को 10 बजे दरियागंज में। हमें पता नहीं क्या नहीं मूड आया उस वक्त, हमारा प्रेस अपना हो गया था, बिल्डिंग तो शायद नहीं थी, किराए का था, लेकिन हो अपना गया था। हमें पता नहीं क्या आया, हमने कहा कि चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमने झांका तो 2 बुजुर्गवार बैठे हुए बिस्तर खोल के, और बिस्तर लपेट नहीं पा रहे हैं क्योंकि कमरे में शीशे टूटे हुए हैं। दिसंबर के महीने में कॉन्फ्रेंस होती थी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, जब स्कूल की छुट्टियां होती थी। तो बैठे हुए हैं, तो हमने कहा भाई साहब ये कैसे बैठे हुए, आप सो नहीं रहे? कहने सोए कैसे, शीशे टूटे हुए हैं इतने सारे, हवा आ रही है। अब 50-60 का आदमी और शीशे खुले हुए हों, दरवाजे खुले हुए, कैसे सोएगा? हमने उसी वक्त अपने टेलीफोन किया ओखला फैक्ट्री में और वहाँ से आदमियों को बुलवाया। मैंने कहा भाई और तो कुछ हो नहीं कि गत्ता लेकर आओ और हथौड़ी ये और वो सामान। उनको बुलाया उन्होंने 10 बजे और रात भर उनसे यही काम कराया अपने आदमियों से कि जो शीशे टूटे हुए थे बंद करिए। और हमें वो चीज़ इतनी आखिरी हम भूले नहीं उसको। तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस ऐसी होती थी स्कूलों के अंदर। फिर एक दफ़ा जब दिल्ली में कॉन्फ्रेंस की बात आई 1921 से 2095 में 1995 में 1995। तो हमने कहा भाई हम तो तालकटोरा स्टेडियम में करेंगे। अब तालकटोरा स्टेडियम 2 लाख रुपए तो किराया देना और भी खर्चे होंगे, लोग बाग ठहरेंगे कहाँ, क्या होगा। हमने कहा हम तो तालकटोरा स्टेडियम में ही करेंगे। 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, हमने वो भी उनको देने के लिए मैंने कहा आएंगे, और जो खर्चा मैंने कहा सब इंतजाम होगा। तो अपने अड़ गए और हमने वो कॉन्फ्रेंस तालकटोरा स्टेडियम में ही करी। और तालकटोरा स्टेडियम में तो अगर स्टेडियम देखा है तो स्टेडियम इतना बड़ा है, अंदर का एयर कंडीशनड है, 4,000 आदमी बैठ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमने 2-4 जने थे मिल के तालकटोरा स्टेडियम में किया। हमारे एक पीए थे एजुकेशन मिनिस्टर के, जिनके अंडर में था वो, हम उनके यहाँ पहुँच गए दफ्तर में। हमने कहा यार भाई साहब ये अलॉट करवाओ उनको। तो उन्होंने वो अलॉट करवा दिया और हमने कहीं से इंतज़ाम करके 2 लाख रुपए भी दिए। अच्छा, और जब वो तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा था तो उस वक्त हमने चीफ मिनिस्टर से इनॉग्रेट कराया था, बुला के फंक्शन को। एक अपने भार्गव साहब चेयरमैन थे, हैं अभी भी हैं वैसे वो, कौन सी कंपनी है कार की, उसके चेयरमैन थे।
उनको चीफ गेस्ट बनाया। मतलब जहाँ पे वो सोते थे स्कूल के कमरे के अंदर, और फंक्शन वहीं मुश्किल से 40-50 आदमी आते थे। तो हमारे यहाँ 1500 आदमी आए, और उसकी नकल करके आगे से परमानेंटली स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया कॉन्फ्रेंस का। हमारे माने सर, इंडस्ट्रियल एरिया अब तो काफ़ी बड़ा है दिल्ली का, माने सर का, मारुति भी है, हमदर्द भी है, बहुत बड़ा हो गया है। तो माने सर में पहले ज़्यादा फैक्ट्री नहीं, शुरुआत ही थी 2003 में। तो हमने जो शुरू में 8-10 जने थे, हम लोग मिल के बैठे वहाँ एक रेस्टोरेंट में, किस अपने एसोसिएशन बनाया जाए तो हम बार्गेन कर सकते हैं भाई गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी, 10-20 जने मिल के जाएँ तो ले सकते हैं। तो हमने वहाँ पर माने सर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बनाया। तो शायद ये जो मैं सीनियर था, मोस्ट था, तो मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। अच्छा, तो एक ऐसी लेडी थी, वो टिपिकल पॉलिटिशियन, वो सेक्रेटरी बन गई। तो हमने देखा जब भाई हम प्रेसिडेंट हैं, वो सेक्रेटरी बना ली, तो कैसी जगह है, कैसा ऑफिस चला रही है। तो वो क्या था, उनका रहने का 2 बेडरूम का कमरा था, वहीं फ्लैट था मानेसर में ही। वो उसने सेक्रेटरी बन गई वो, और जो ऑफिस सेक्रेटरी लेडी बनी थी, वो उनके खाने की छोटी सी टेबल थी, उसमें वो खा रही है, उसमें काम कर रही है वो। मुझे बड़ा अजीब लगा वो। मैंने उसी वक्त 1 घंटा भी नहीं लगाया सोचने में, अपने ऑफिस से टेम्पो भेजा, और उनका सारा सामान ऑफिस का जो था वो अपने यहाँ अपनी बिल्डिंग में ले आया, मानेसर जो हमारे पास है आजकल, और वहाँ मानेसर का ऑफिस हो गया, आज तक चल रहा है। और जो हमारा ऑफिस सेक्रेटरी था कुमार प्रिंटर्स का, उसको ऑफिस सेक्रेटरी बना दिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का, मानेसर का, और वो आज तक चल रहा है। हमने उस कमरे में एयर कंडीशन भी लगा दिया, टेल भी लगा दिया, और जो सेक्रेटरी जिस बनाया था वो स्टिल कुमार प्रिंटर्स एम्प्लॉई अपनी कंपनी का, और आज वो 25 साल हो गए भार्गव सभा का सेक्रेटरी बना हुआ काम कर रहा है, एंड सैलरी एंड एवरीथिंग इज पेड बाय कुमार प्रिंटर्स। वहाँ पे भी आज के दिन भार्गव सभा में भी, जो मैंने बताया था कि हालत थी, धर्मशाला में ठहरते थे, सोते थे, अब उनका एक जोरबाग में, आइडिया होगा आपको दिल्ली के जोरबाग का, वहाँ पर एक मकान था भार्गव सभा का, बहुत पुराना, किसी ने डोनेट किया था। तो डोनेट किया हुआ था, तो साहब वो खाली नहीं कर रहे थे, और जोरबाग तो बड़ी एक्सपेंसिव जगह हो गई है दिल्ली में, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो हमने कुछ, जो साहब खाली नहीं कर रहे थे, वो किराया दे रहे थे 2 लाख रुपए करीब साल में, कुछ ऐसा ही। तो हमने 2-4 जनों को राजी किया, मैंने कहा इसे खाली करवाओ, और उनको 20 लाख रुपए देकर खाली करवा लिया जैसे तैसे। और आज उस मकान का किराया 2 लाख रुपये महीने आता है, 1.25-2 लाख रुपये महीना। खाली करवाया, उसको रिनोवेट कराया, और फॉरेन एम्बेसी वाले हैं या मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने किराए पे लिया हुआ है आज। तो इनिशिएटिव लेने से, कुछ करने से तो काम बनते हैं, लेकिन एक लोग बात डर जाते हैं सोच के इतना बड़ा एक्शन कैसे लें। और जब भार्गव ने 2 लाख रुपए 20 लाख रुपए दे खाली करवाया, तो भार्गव उस दिन पैसे नहीं थे अपने पास, जब कमिट कर लिया हमने, इंतजाम किया पैसे का और खाली करवाया उनसे।
तो ये आदमी कमिटमेंट और थोड़ा सा एक दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं, कोई काम के तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा ये बताइए मनमोहन जी कि जैसे ये जो बड़े जितने तीज त्यौहार पर्व होते हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, इसमें कौन सा त्यौहार आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए भार्गव सभा का अपना त्यौहार नहीं मनाते हैं कोई। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया, अपने घर पे लगाते हैं। सबके ब्याह शादी होती है या कोई फंक्शन होते हैं। अब जैसे कंट्रीब्यूशन की बात है, अब जैसे हम लोगों ने कुछ किया हुआ है, अब जैसे पता लगा कि भाई कोई इनके घर में हॉस्पिटलाइज है। अभी भार्गव सभा की बात रहने दीजिए, हाँ, ज़ाती तौर पर, निजी तौर पर अपने बारे में बताइए कि इतने त्योहारों में आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है? हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। त्यौहार मनाने में आपकी दिलचस्पी नहीं है कोई? है त्यौहार में कोई ज़्यादा खुशी नहीं होती, कपड़े खरीदें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। तो हमारे यहाँ वो हमने तो कभी नहीं किया ऐसा। अच्छा, लेकिन भाषा जब भी किसी भार्गव सभा की बात नहीं करते हैं मनमोहन जी, अभी आपकी बात करते हैं। क्योंकि भार्गव सभा से जुड़ने से पहले भी तो आपका एक जीवन उधर एशिया प्रेस से लेके दिल्ली प्रेस तक था, और जब साल गुजरता है तो कुछ न कुछ ऐसी फेस्टिविटी तो आती ही है। तो आप तो कमा भी रहे थे और इतने त्यौहार आते थे, तो क्या करते थे आप उन त्योहारों पर? जैसे कुछ ख़ास अपने को एक स्पेशल फील कराना, बच्चों को, पत्नी को, क्या कैसे आप करते थे ये जब फेस्टिविटी का? वो तो हमने लिमिट अपने घर तक ही रखी हुई थी। अब वो कैसे करते थे, क्या कुछ याद कीजिए, ऐसी कोई मज़ेदार बात? त्यौहार पे हमने कोई ख़ास नहीं किया, जो सब लोग करते हैं नॉर्मली वही वही होता था, घर की फैमिली मिलके। अच्छा, फिर कभी जैसे छुट्टियां मनाने का मन करे कि चलो भाई साल भर बहुत काम किया, कि चलो घूम आते हैं कहीं, महाबलीपुरम घूम आते हैं, ऊटी चले जाते हैं, कुछ कहीं विदेश चले जाते हैं, आप कहाँ कहाँ घूमे काम के अलावा, मज़े करने के लिए? हाँ, मतलब घूमने के लिए हमने 10 साल पहले तो अमेरिका का ट्रिप लगाया था एक। वाइफ हम थे और एक और फ्रेंड था। और इंडिया में भी घूमे हमने, कार ले ली और 10 दिन के लिए चल दिए। अच्छा। कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी घूमने में? ज़्यादातर हिल स्टेशन ही थे जाके हम लोग चले आते थे। कोई हिल स्टेशन का नाम लीजिए। नहीं, एक दफ़ा तो पूरे साल के लिए हमने मसूरी में एक बंगला बुक करा लिया था। एक हमारा फ्रेंड भी था। हमने कहा कि एक साल बहुत होता है, काफ़ी बड़ा बंगला था, तो हम लोग जाके टर्न बाई टर्न जब मर्जी आया तब रहते थे। इतने सारे एक साथ 20-25 जने रह सकते थे। तो कभी वो 4-6 जने उनके यहाँ चले गए, 4-6 हमारे चले गए। तो इतना था कि जो हमारा फ्रेंड था उनकी मदर, उनके और भाई, कज़न, ऐसे ही हमारे यहाँ से इकट्ठे चले आया करते थे। और फ्रेंड ऐसा था कि उनकी मदर भी, हम लोग पढ़े थे, साथी थे, वो तो बहुत रईस आदमी थे कि ज़माने में। उनके जब ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो उनके 6 लड़के थे, सबको दिल्ली में सिविल लाइन में 2-2 बंगले शेयर आए थे, मतलब इस तरह के थे। और हम तो बड़े ऑर्डिनरी आदमी थे, लेकिन फिर हमारी दोस्ती खूब रही, खूब निभी। उनकी मदर भी हमारे घर पे भी आ जाती थी, हम तो उनके यहाँ जाते ही थे। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि वो जो 200 रुपए की तनख्वाह थी, 200 रुपए की,
उसमें अचानक 120 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो आपको तो मालूम था कि जब महीना ख़त्म होगा तो अब तो आपके पास 320 रुपए आ जाएंगे, ये बढ़े हुए पैसे। उससे क्या कुछ ख़रीदने का दिल किया कि क्या क्या ये ख़रीदें, जूते, कपड़े, मतलब खाने की चीज़ें? कुछ एक होता है ना कि अब आपकी तनख्वाह बढ़ गई तो ज़िंदगी में थोड़ी खुशी आ गई, तो उस पैसे के खर्च का कुछ सोचा था आपने तब? पहले तो नहीं सोचा, लेकिन बाद में जब आ गए तो भाई हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर सब लोग थे फैमिली में, इनकी ब्याह है, शादी है, ये सब हम सबसे पहले पैसा वहीं जाता। और ये जो आपके अमीर दोस्त थे, उनकी अमीरी को देखकर कब कुछ एक एक ईर्ष्या होती थी कि ये एक दिन ऐसा ही बनूंगा मैं खुद, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं हमने, ऐसा कभी सोचा नहीं। अभी बचपन के दोस्त अभी भी हैं, 50 साल से, 40 साल से अभी भी हैं, जो 40 साल पहले थे, 50 साल पहले थे। तो ये जो आप अचानक ये जो फैसले लेते हैं कि 1 घंटे में ऐसा कर दूंगा, 1 मिनट में ये फैसला कर लूँगा, ये क्या है, क्यों है आपके अंदर ये कि ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने फैसले लेने हैं, आप 10 जनों को इन्वॉल्व करिए, तो कोई बैक आउट हो जाएगा, कोई मना कर देगा, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। बट वंस यू टेक ए डिसीजन तो शायद उन लोगों की हिम्मत पड़ जाती है, इसने कमिटमेंट किया है, ये करता रहा है, तो हो जाता था काम। ऐसे मामलों में ज़्यादातर सुना ये जाता है कि किसी को देखा कि वो ऐसा करता था तो एक एक बनता है कि एक सीख है कि जैसा उसने किया वैसा करूँगा। आपके सामने कौन ऐसा उदाहरण, मिसाल, कौन ऐसा था जिसको, जो आपके लिए कोई प्रेरणा का काम करता था? देखिए, ज़्यादातर जगहों पे इनिशिएटिव मैंने लिए। अब जैसे हमारे और एक दोस्त हैं, दे आर वेरी वेल टू डू। अब जैसे तालगढ़ स्टेडियम मैंने केस बताया आपको, सबको लगा देख के हमारे यार दोस्त को, यार इतना पैसा कहाँ से खर्चा करेगा, सब लोग चाहते हैं सस्ती जगह मिल जाए, कम खर्चे की मिल जाए। मैंने कहा यार हम तो यहीं करेंगे। और फिर 2-4 जने जुड़ भी गए जिन्होंने सपोर्ट करी उसमें। तो ये देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि मानेसर इंडस्ट्री का केस था, मैंने उसी वक्त अपना टेम्पो भेजा, सामान उनका मंगवाया और ऑफिस शिफ्ट कर दिया, और आज भी ऑफिस चल रहा है। और मानेसर में प्रेसिडेंट तो खैर बनाया, जो भी किया उन्होंने, फाउंडर प्रेसिडेंट बना दिया, और पता नहीं क्या क्या बना दे दिए हैं। तो लेकिन मैंने तो काम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करी है कि जो काम अच्छे से अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो, वो करो। और लोग बाग हिम्मत कम करते हैं वैसे, कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। ऐसे ही जैसे अब हमारे क्लाइंट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रनबैक्सी बहुत बड़ी कंपनी थी, अब तो खैर ख़त्म हो गई वो, उनका हमने काम शुरू किया। तो मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरा उस वक्त अपना प्रेस नहीं था, और ऐसा नहीं कि वहाँ कोई पैसा नहीं चलता था रनबैक्सी में। तो उनके जनरल मैनेजर थे मार्केटिंग के, वो अपना लिटरेचर वगैरह छपाया करते थे। क्या नाम? मिस्टर NS सानी। अब तो डेथ हो गई, काफ़ी दिन हो गए। तो उनका एक ही बिल बना करता था, 1-2 लाख रुपए का उस वक्त। जिस प्रेस में छपता था, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में जहाँ मैं छपता था, उन्होंने नया प्रेस लगाया था, अच्छा, बहादुर शाह जफर रोड पे है। तो
छपाते थे, मैं उनका काम। और एक दफ़ा मैं उनको अपने साथ ले गया वहाँ पर चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट में कि देखिए ये आपका छप रहा है यहाँ पर, और उनको बताया ये सानी साहब हैं जनरल मैनेजर रेनबैक्सी में। उनसे इतनी हमारे ट्रांजैक्शन क्लियर होती थी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि वो चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नाम सुना होगा, शंकर वीकली, और उनके टी ए पाई एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी में थे 2 जने। तो उनके यहाँ काम तो मैं करवाता ही था। उन्होंने मुझे 63 में ऑफ़र किया तनख्वाह के 1400 रुपये 63 में। तो मैंने उनसे कहा, अब देखिए भाग्य की बात करने कुछ, मैंने कहा कि मुझे तो कार और मकान चाहिए। अब 63 में मेरी उम्र 22 साल की, वो दोनों वहीं बैठे थे मेरे साथ में। भाई दोनों ही बहुत बड़े आदमी थे, शंकर वीकली वाला भी और वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट भी। तो कहते हैं तो बड़ी कि इस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अच्छा, फिर मैंने तो छोड़ दी। मैं तो अगले साल अब बिना किसी मशीन के, बिना ऑक्सीजन के मैंने अपना प्रेस शुरू किया। मैंने तो अगले साल 2500 महीना कमाना शुरू कर दिया। और जो दूसरा आदमी था उनके यहाँ, लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का, उन्हीं का काम कर रहा था। जो मैंने 1400 मना कर दिया था, उसको उन्होंने 800 रुपये महीने पे रखा। मैंने 1400 मना कर दिए, उनको 800 रुपये महीने दें। और वो आखिरी दम तक, वो हमारे दोस्त भी रहे, वो भी, मैं भी अपना काम वहाँ करवाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, अपना काम करता था। वो लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्वालिफाइड थे, ग्रेजुएट। तो उनको उन्होंने 800 रुपये दिए। मेरे को 1400 रुपये ऑफर किए, फ्री मना कर दिया मैंने, और उनको 800 रुपये शुरू किए। और आखिरी दम तक वो बस से अपने घर से जाते रहे। मॉल टाउन में रहते थे वो, लखनऊ रोड पे, और डॉल्स म्यूज़ियम के बाहर से बस लेते थे। मैंने देखा उनको, वहीं से रिटायर हुए। तनख्वाह तो मुझे नहीं पता कितनी मिलती थी, लेकिन गाड़ी नहीं खरीदी उन्होंने। और हमने थोड़ी देर बाद ही गाड़ी खरीदी, 6-8 महीने बाद। तो ये भाग कहिए, कुछ भी कहिए, हिम्मत कहिए, क्योंकि डर लगता है मैं गाड़ी खरीदूंगा, कहाँ से रिपेयर कराऊंगा, कहाँ से क्या करूंगा। सोचते रहे तो यही हो जाता है। फिर आप लेकिन देखेंगे मनमोहन जी कि जब आप अपना इंडिपेंडेंट कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ देश में जो पॉलिसीज़ हैं, मतलब चाहे टैक्सेशन रिलेटेड हो, कंपनी रजिस्टर कराना हो, लेबर लॉज हों, आपके साथ 10, 15, 20, 50 लोग काम करते हैं, तो बहुत तरह के कॉम्प्लायंसेस आपको मीट करना पड़ता है। और वो कई बार बहुत आसान नहीं होता, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के लिए, या आप जैसा आदमी जो सेल्फ मेड कोशिश करके आगे बढ़ रहा है, कितना मुश्किल काम है ये आपको, कि कितना मुश्किल ये काम लगा? ये थोड़ा सा इसमें, अब जैसे आपको बताता हूँ कि लेबर इंडस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है लेबर को हैंडल करना। और हमने हमेशा पे शुरू से लेबर कंसल्टेंट रखा, जबकि नॉर्मली हमारे साइज़ के प्रेस वाले नहीं करते हैं लेबर कंसल्टेंट।
महीने में एक दफ़ा उनको बुलाया या हफ्ते में एक दफ़ा बुलाएं, उनकी राय लें, और जो भी कहते नहीं यार ये काम ठीक नहीं है मत करो, नहीं किया। और हमारे यहाँ आई टेल यू, मुझे फैक्ट्री रन करते इतने दिन हो गए हैं, आज तक 1 मिनट के लिए भी वर्किंग में कोई डिसरप्शन नहीं हुआ लेबर की वजह से। नॉट इवन 1 आवर का डिस्क्रप्शन नहीं हुआ है। ये तो हुई एक बात जो कि आपके लेबर रिलेटेड आपके अप्रोच को बताती है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। मसलन कि अगर कोई एक मिनिस्ट्री किसी कॉम्प्लायंस के मीट ना कर पाने की वजह से आपको परेशानी में डाल रही हो, तो क्या होगा? उस केस में आपका तो काम रुक जाएगा। नॉर्मली ऐसा हुआ तो नहीं आज तक, क्योंकि हम पहले ही कोई काम करने से पहले अच्छी तरह ठोक बजाते थे। क्योंकि करप्शन हम लोगों के यहाँ एक कल्चर की तरह रहा है, अगर आप देखिए, और जहाँ थोड़े से ज़्यादा पैसे और एक कैपिटल इंटेंसिव एंटरप्राइज की बात होगी तो वहाँ सबकी एक लालच रहती है कि कोई किसी क्लैरिकल काम को आगे बढ़ाने में आपसे ब्राइबिंग और ये सब किया जाए। देखिए, इनकम टैक्स में हमने किया होगा, सेटल किया होगा, लेकिन बहुत कम, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। अव्वल तो हम ओपनली ऐसे कोई गुंजाइश नहीं रखते थे जिसे पता लगेगा इसने बहुत गड़बड़ करी हुई है। हम स्ट्रेट रखते थे अपना काम जहाँ तक हो सके, और दिया होगा कहीं दिया होगा, हार्डली, वरना हमारे यहाँ होता भी नहीं था। इवन इनकम टैक्स में हमने बहुत कम दिए होंगे। हमारा काम इतना सिस्टमेटिक होता था कि काम हो जाता बिना पैसे के, कि हमने अपेरेंटली कोई ऐसा काम ही नहीं किया हुआ होता था कि किसी को लगे कि इन्होंने बहुत गड़बड़ कर रखी है। दिया होगा तो कभी दिए होंगे, लेकिन बहुत कम, वेरी रेयरली, वेरी रेयरली। नहीं, मसला सिर्फ आपके देने या किसी के लेने का नहीं है। आदमी ये थोड़ा सोचता है कि अरे फलां देश में जाओ तो वहाँ काम करना कितना आसान है, हर मतलब एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। कितनी माथापच्ची है कि आप पहले जाओ उस डिपार्टमेंट में, फिर उस डिपार्टमेंट में, और वो फाइल घूमती रहती है। और आज से 50 साल पहले तो ये बहुत कॉमन चीज़ थी कि आप कोई चीज़ शुरू करिए तो ये सब बड़े झमेले थे। देखिए, उस वक्त भी हमारे जान पहचान में ऐसे आदमी हैं कि इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, ये ट्रिब्यूनल के मेंबर रहे, चेयरमैन रहे, कभी उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, कभी भी। और वो रिटायर्ड है, मियाँ बीवी। एक तो CBDT की चेयरमैन रही, क्योंकि दोनों एट ए टाइम मेंबर थे बोर्ड के, लेकिन क्योंकि वो एज में कम थी तो साहब तो रिटायर हो गए, वो 2 या 3 साल बाद रिटायर हुई, लेकिन दोनों एट ए टाइम CBDT के मेंबर थे, और दोनों मशहूर हैं, रेपुटेड हैं कि कभी एक पैसा नहीं लिया उन्होंने। भार्गवी है वो, इंसिडेंटली, कभी पैसा नहीं लिया उन्होंने। तो हम लोग मनमोहन जी बातचीत अब धीरे धीरे वाइंड अप करेंगे, आपको ज़्यादा थकाना भी नहीं चाहते। ये कहिए कि आपने बीच बीच में ये कहा कि पता नहीं क्यों आपके अंदर एक प्रिंटिंग सुपरवाइज़र का कोई गुण आ गया था आपके अंदर। कभी आप सोचते हैं इस पर कि एज ए प्रिंटिंग सुपरवाइज़र कैसे आपके अंदर ये एक विशेषता आती गई होगी कि आप दूसरे सुपरवाइज़र्स की मुकाबले आप अलग खड़े हुए आगे बढ़ गए? देखिए, चांस ऐसा है कि जैसे दिल्ली प्रेस से मुझे मौका मिला, हर एक प्रेस में नहीं मिलता है, हर एक मालिक भी इतना नहीं सोचता है अपने स्टाफ के बारे में, वर्कर। और मैंने हार्ड वर्क किया, मेहनत करी, और सोचा मेरे बारे में, और मैंने उनके बारे में सोचा। तो ये चीज़ जो है, ये देखिए, अब जैसे मैंने आपको केस बताया
बाहर का सभा का, कि रात को 10 बजे। हाँ, वो मैं समझ गया। मतलब उसमें इनिशिएटिव लेने की बात थी और आपने उसको एक आगे बढ़कर किया। लेकिन एक प्रिंटिंग सुपरवाइज़र में क्या गुण होने चाहिए अगर कोई आज एज अ प्रिंटिंग सुपरवाइज़र अपना करियर शुरू करना चाहे और उसमें चाहे कि हम बड़ा नाम कमाएं और सारे दूसरे प्रिंटिंग सुपरवाइज़र्स को पीछे छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं, तो आपने क्या सीखा कि एक अच्छा प्रिंटिंग सुपरवाइज़र कौन होता है, क्या गुण है उसके? देखिए, एक सिंसियर हार्ड वर्क, ये तो बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकली समझने की कोशिश करना। वो क्या है टेक्निकली समझना? कि भाई, अब जैसे मैंने बताया ना कि आदमी कोई काम पर हमारे आया लगा, तो उसकी मेहनत का प्रॉपरली रिवार्ड मिलना चाहिए, और ये हमने किया। और जिन्होंने ये किया वो इंडस्ट्री में खड़े हो गए, और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वो ख़त्म हो गया। भाई, आप रिकॉग्निशन नहीं देंगे, अच्छे आदमी को नहीं पहचानेंगे, अच्छे आदमी को रिटेन नहीं करेंगे, तो कैसे ग्रो करेंगे? तो अच्छे आदमी को समझना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिवार्ड देना, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और वो अगर आप नहीं पहचानेंगे तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल ही नहीं हो सकते। आप 10 में से आप क्या काम कर रहे हैं, 10, उसमें एक को क्यों आप इंक्रीमेंट देते हैं 500, और क्यों देते हैं एक को 200? ये आइडेंटिफाई करने वाली बात होती है। अच्छे आदमी का रिकॉग्नाइज करना, अच्छे वर्कर का, अच्छे स्टाफ का, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये जो अब देखिएगा, करीब करीब आपने कहा ही कि 71 साल आपने इस 71 साल की उम्र तक आपने ये काम किया प्रिंटिंग का। इसकी कुछ सीखें, इसकी लर्निंग्स आपके पास क्या हैं? इस प्रोफेशन को तो आपने बहुत बदलते हुए भी देखा, चाहे वो टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा हो, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर वैल्यूज़ में बदलाव आ रहा हो। आपकी क्या लर्निंग्स हैं इन 6-7 डिकेड्स को अगर देखें तो? एक तो वन इज़ हार्ड वर्किंग, और दूसरे स्ट्रेट डीलिंग रखना। जैसे हमारे यहाँ कस्टमर हैं 40-50 साल से हैं, सप्लायर भी हैं, दोनों ही हैं, एंड दे आर विद अस। इसमें लर्निंग्स क्या हैं आपकी? आपने क्या सीखा? भाई, सीखा ये कि इफ़ यू आर फेयर इन डीलिंग तो आपका चल जाता है लम्बा। इफ़ यू आर फेयर इन डीलिंग तो आपको लॉन्ग रिलेशनशिप रहती है, और वो बहुत ज़रूरी है। आप अभी आखिरी बार अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कब गए थे? कितने महीनों, साल भर पहले कब गए थे आप अपने प्रिंटिंग प्रेस में? नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में तो अभी गया हूँगा मैं 15-20 दिन पहले। अच्छा। वहाँ पर किसी एम्प्लॉई का नाम आपको मालूम है, याद है? हाँ, कईयों के याद हैं। किसी एक का नाम लीजिए। नहीं, सुपरवाइज़र या वर्कर? जिसका भी आप चाहें लीजिए। केपी साई है। वो क्यों, वो आपने केपी साही का ही नाम क्यों अचानक लिया? नहीं, काफ़ी दिन से काम कर रहा है, अच्छा, उनकी क्या खासियत है? और सिंसियरली काम करता रहता है वो अपना। कितने साल से कर रहे होंगे वो? हो गए होंगे, मेरे यहाँ 15 साल तो हो गए होंगे। कुछ ऐसे वर्कर भी हैं जो 20-22 साल। अच्छा, हम देखते हैं कि आप दुनिया भर में पैकेजिंग का कोई अलायंस, जो ग्लोबल अलायंस है, उसके भी आप एक अभिन्न अंग हैं। भारत में तो शायद और कोई है नहीं। इसका क्या है, इसके बारे में बताइए। उसमें ऐसा है, तो उन लोगों ने एक ग्लोबल पैकेजिंग अलायंस बना रखा है। किन्होंने? उन्होंने मिल के, पहले जैसे 4-5 जने थे, फिर इंडिया में आए,
इंडिया में सबसे बड़े प्रेस को लिया तो पता नहीं क्या हुआ, उनको नहीं जचा। फिर हमें विज़िट किया उन्होंने, हमारा सिस्टम देखे, हमारे प्लान देखा, हमारी वर्किंग देखी, तो हमें उन्होंने अपना मेंबर बना लिया। अभी कोई दिक्कत पड़े किसी चीज़ की टेक्निकली या कुछ असिस्टेंस लेना हो तो हम अमेरिका के प्रिंटर से जाके बात कर सकते हैं, भाई यार ये बताओ कैसे प्रॉब्लम है, ये कैसे ठीक होगी। तो ऐसे जर्मनी का भी है, चाइना का भी है, हाँ कोरिया में भी हैं। तो अपने को कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो उनसे सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो ये नहीं हम भी मानेसर कभी जब मानेसर हमें शिफ्ट करना था ओखला से, तो हर मानेसर नई जगह थी, तो सबकी अलग जगह की अलग प्रॉब्लम होती हैं। तो हमने सोचा भाई कैसे कोई प्रॉब्लम हल करी जाए। जब फैक्ट्री शिफ्ट होने लगी तो हमने वर्कर को 2 दिन 2 बस करके मानेसर में घुमाया। मैंने कहा जाओ छुट्टी है तुम्हारे, पूरे 2 दिन घूमो और देख क्या वहाँ क्या क्या दिक्कत तुमको मिलेंगी नई जगह में, क्योंकि नया इंडस्ट्रियल एरिया बना था आज से 8-10-12 साल पहले। तो हमने 2 दिन किया और फिर सबको बुला के पूछा क्या क्या दिक्कत है होगी तुमको। करें एक तो वहाँ महंगा है किराया, 3-4 हज़ार महीने का खर्चा हमारा बढ़ेगा, मेहनत होगी। और दूसरे ओखला में फैक्ट्री थी, वहाँ तो ये बाहर पुराना एरिया था, गांव के साथ दिल्ली के साथ लगता हुआ, और ठेले वाले खड़े रहते थे लंच टाइम में, सबको खाना वहीं से मिल जाता था आराम से। यहाँ पर बोले कि साहब खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। क्या मैंने कहा भाई ये 2 दिक्कतें तुम्हारी। हमने 3-4 हज़ार रुपये सबके वर्कर के किराए के बढ़ा दिए और अपने यहाँ पेंट्री का इंतज़ाम कर दिया फैक्ट्री में। जब बना रहे थे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज एक भी आदमी छोड़ के नहीं गया। तो ये चीज़ें देखिए, दूसरे की तकलीफ़ भी देखना बहुत बड़ी चीज़ है ये। तकलीफ़ की क्या बात कहते हैं मनमोहन जी, मज़दूर के को एक्सप्लॉइट करके ही तो मालिक अपना पूंजी बढ़ाता है। मैं ये बात नहीं मानता। मैं ये बात नहीं मानता। और बहुत से वो हमारे यहाँ भी पहले मीटिंग होती थी वर्कर की दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो हम लोग मीटिंग करते थे, बुलाते थे, उनसे डिस्कस करते थे। अब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम पता लगा भाई इनकी ये दिक्कत है, ठीक है ठीक करो, इसको छोड़ दो। अभी दिवाली हुई है तो कुछ लेबर तो ऐसी है 30-30 साल से काम कर रही है, 32 साल से काम कर रही है, 24 साल से काम कर रही है। तो ये देखिए ह्यूमन एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह कस्टमर भी है, सप्लायर भी हैं, दे आर विद अस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छा ये देखिएगा कि जब आप किसी काम में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसी काम को दूसरे लोग भी कर रहे होते हैं। इसको कह सकते हैं आपके एक तरह का कंपटीशन आपके अपने प्रोफेशन में होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स में होता है कि अगर एक दौड़ने वाला है तो उसके साथ और दौड़ने वाले हैं, उनके साथ तेज़ दौड़ना है। आपके केस में जो कॉम्पिटिटर्स थे वो कौन थे इस प्रोफेशन में? कंप्यूटर देखिए कहीं ना कहीं तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कहीं सैलरी होती है, कहीं बिहेवियर होता है, कहीं फैसिलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे प्रेस वाले या इंडस्ट्री वाले अपने आदमियों को देखते नहीं उसकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, बहुत सारे सोचते ही नहीं हैं।
नहीं, हमारे यहाँ भी पहले होता था कि वर्कर के साथ मीटिंग होती थी 2-4 महीने में एक दफ़ा, वो वर्कर के साथ कि भाई शिकायत है तो सब लेके आ जाओ। तो बैठ गए, सबकी बात सुन ली, जिसकी ठीक रीजनेबल समझी उसको यस कर दिया, जिसके नहीं हुई थी भाई ये नहीं चल सकता है। लेकिन जब उन्हें पता है कि भाई ये ठीक है तो ठीक है, ओके। तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम लोग कुछ मज़े मज़े में कुछ बातें करेंगे, तो कुछ बातें हुई हैं। आपको लगता है कि बातें पूरी हो गई हैं कि कुछ आप? नहीं, ये तो आगे बढ़ती रहती हैं और होती रहती हैं, ये तो सब चलता है, दिस इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक दफ़ा में कभी इस तरह के निर्णय, इस तरह के डिसीजन वो कभी कंप्लीट थोड़ी होते हैं। एक इंसान की शक्ल में जब आप अपने को देखते हैं, मतलब मनमोहन कुमार भार्गव जब अपने को एक कह सकते हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करता है, तो अपने अंदर क्या कमियां पाता है? क्या कमियां आप अपने अंदर पाते होंगे? जो इंसान तो कभी पूरा नहीं होता, कहा जाता है वो गलतियों का पुतला है। कुछ तो आप अपने अंदर ऐसी कमी पाते होंगे कि जिन्हें शायद इस जन्म में या अगले जन्म में आप दोबारा ठीक कर लेना चाहें। हम आज की जो गलतियाँ हैं ना, वो आज के पर्सपेक्टिव में देखनी पड़ेगी। हमेशा वही चीज़ सही नहीं लगेगी, हमेशा वही चीज़ गलत नहीं लगेगी, तो टाइम के हिसाब से उस पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है उसको। वो तो आपका कहना ठीक है, लेकिन एक पर्सनालिटी का एक मेक जैसा हो जाता है। इंसान अपनी ही बनाई आदतों या टेम्परामेंट का जैसे कभी ग़ुलाम हो जाता है। वो कहता है नहीं मैं तो ऐसा ही हूँ। तो क्या मनमोहन कुमार भार्गव एक बहुत बिगड़ैल, गुस्सैल और एक टेम्परामेंटल आदमी है जो नाक पे उनके गुस्सा धरा रहता है? देखिए, वो तो आप घर में ही बात करेंगे तो नहीं चलती है। आपका बच्चा भी एक दिन उड़दंग हो जाएगा, एक दिन बच्चा भी आपका एक दिन रिबेलियन हो जाएगा, तो वो तो चलती नहीं है। वन हैज़ गॉट टू बी रीजनेबल, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। फिर भी आपने अपने आप को कैसा पाया? देखिए, पहले हम तो ये देखते हैं कि दूसरे की दुख तकलीफ़ कहाँ है और कैसे हम उसको सुकून दे सकते हैं। पता है उसको तकलीफ़ होगी तो अब काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से तो वो चलता है। अगर ठीक से बिहेव नहीं करेंगे तो उसको प्रॉपर आप उसके साथ काम नहीं करेंगे। ज़िंदगी में आपको संतोष, कहते हैं ना कि संतोष का सबके लिए अलग अलग पैमाना है, सेटिस्फैक्शन का। आपके लिए क्या चीज़ है जो संतोष देती है, सुख देती है, खुशी देती है? देखिए, एक तो सबसे पहले जो आपके साथी हैं, अगर उनको सेटिस्फेक्शन है तो इससे बढ़िया कोई और बात नहीं हो सकती। अभी एक वर्कर जो 30 साल से काम कर रहा है और भी कई जगह उसने देखे होंगे, पता लगाया होगा, साथी होंगे, बताए होगा कि यहाँ पे भी काम होता है, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है ना। तो ये तो अब फिर हर एक कंफर्ट नहीं चाहेगा, ना मिलेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे खाली वक्त मिल गया थोड़ा सा, सब कामों, अभी तो आपके पास काफ़ी खाली वक्त होता है, तो क्या करने का दिल चाहता है कि क्या कर लें उस खाली वक्त का, क्या इस्तेमाल करके क्या कर लें? जैसे कोई फ़ोन देख लें, जैसे किसी को चिट्ठी लिख दें, जैसे किसी से बात कर लें, जैसे कुछ खा लें, जैसे कि बाहर जाकर पौधों में कुछ पानी दे दें। क्या करने का दिल करता है? आपको
टाइम, कौन सा टाइम ऐसा करेगा जो काम करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा या आपको कंफर्ट मिलेगा, ये देखना होता है। जैसे इस वक्त अगर आपको क्या करने का दिल कर रहा होगा, इस वक्त अगर हम अभी चले जाएं तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं तो जाके सोऊंगा सबसे पहले। अच्छा, आपको ये सब चीज़ें बहुत कभी कभी चौंकाती हैं कि जब टेक्नोलॉजी में जितनी सब बदलाव आ रहे हैं, पहले तो आप जानते हैं कि फ़ोन भी नहीं होते थे, मतलब वो वाले घुमाने वाले, बहुत मुश्किल से, और अभी गैजेट्स के साथ आप भी शायद वक्त गुजारते होंगे। ये सब आपको कुछ चौंकाती हैं चीज़ें कि कैसे ये सब? ये तो सब चीज़ें देखिए चलती रहेंगी। अब हमारे यहाँ जब ये मोबाइल टेलीफोन आया तो शुरू में मुझे याद है, हमारा छोटा ब्रदर भी हमारे साथ था, अब तो उनके लड़के अलग कर रहे हैं, तो हमने कहा बे 16 रुपये जाने कॉल जाने के लगते हैं, 16 रुपये आने के लगते हैं, कोई कोई टेलीफोन नहीं खरीदेगा। सब चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले संदीप याद है हमें ही लाके टेलीफोन दे दिया था कि भाई साहब को दे दो, सबके अपने आप आ जाएंगे। ये भी थोड़े से मजाक किया वैसी बात होती है और होता भी है। अच्छा, पिक्चर देखने में आपका कैसा शौक है? पिक्चर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार और देवानंद, कोई बताइए। हमने देखी है, अच्छी एंटरटेनमेंट है, अच्छा अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट। माने कोई हीरो कोई अच्छा लगता था आपको जब कभी देखा करते थे? नहीं, ठीक लगते, अच्छे लगते थे ये सब। ये पुराने हीरो वगैरह अभी भी आते हैं, टीवी पे तो बहुत आते हैं। जैसे किसी का नाम लीजिए। नहीं, अपने अपने टाइम में जैसे देवानंद है, दिलीप कुमार है, ये सब। अच्छा, हीरोइनों में मधुबाला, कुछ मीना कुमारी, कुछ क्या? हाँ, मीना कुमारी, ये सब अपने टाइम के अच्छे हीरो हीरोइन थे सब। कई बार फिल्मों के गाने भी बहुत वो करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं कि बिल्कुल। हाँ। अब तो बहुत सारे गाने सुने हैं, देखे हैं। कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, बड़ा मशहूर गाना एक हुआ। दिलीप कुमार का है शायद ये, कस्में वादे। खाने में कैसा है आपका? खाने का शौक कैसा है? खाने का अपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने लाइट आराम से खाना है। दिल्ली का कोई सबसे अच्छा फूड जॉइंट जहाँ पे आप कभी दोस्तों को भी बुला लेते रहे और चलो भाई खाते हैं, खाना खाते हैं? नहीं, जैसे कैनॉट प्लेस यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस है। यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, क्यों? उसमें ख़ास क्या है? अपने पास देखिए, एक तो चांद से उनसे एक अच्छी खासी रिलेशनशिप हो गई थी, और दूसरे खाने की क्वालिटी बहुत रीज़नेबल। अब क्वालिटी क्या था, ये उनके जो मालिक थे दिल्ली प्रेस में हमारे पास आया करते थे काम करवाने के लिए, और वो खुद ही आते थे और मेरी से मुलाकात होती थी। और जब हम जाते थे यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस, उनको अच्छा लगता था खाना, 2-4 डिश अच्छी बनाते थे वो, हमको भी अच्छा लगता, तो वो हमें भी अपने पास बुला लिया करते थे। आओ, वो अपनी टेबल पे कोने में बैठा करते थे, आखिर में काउंटर के पास, तो खाते थे। और रिलेशनशिप ऐसी बढ़ गई कि कृष्णलाल नाम था उनका, अब तो उनके लड़के वड़के हैं। एक दफ़ा उनके यहाँ पाकिस्तान से बड़े मशहूर शायर आए। कौन? फैज़ अहमद फैज़। अच्छा। हम मॉल टाउन में रहते थे और वो सिविल लाइंस में रहते थे, तो उन्होंने
उन्होंने टेलीफोन किया मेरे को, भार्गव साहब ऐसा करो कल ब्रेकफास्ट हमारे साथ करो, फैज़ साहब आए हुए हैं तो वो भी हमारे साथ होंगे, तो आप कल आओ। हम गए उनके यहाँ, उनके साथ ब्रेकफास्ट लिया हम लोगों ने। मज़ा इतना था, मतलब फैज़ साहब की कुछ आपको बातें याद हैं उस ब्रेकफास्ट के दौरान, जो बातें हुई, फैज़ साहब ने क्या कहा होगा? नहीं, कोई ख़ास याद नहीं है। एक दफ़ा मिले थे, घंटे भर बैठे। अच्छा, कुछ शेरो शायरी भी हुई या फिर खाली ऐसी ही बातें? शेर व शायरी होती है, दो तीन जनों में नहीं होती है, ज़्यादा जने होते हैं तो होती है। आपकी है कुछ शेरो शायरी में दिलचस्पी? एक आध कोई शेर जैसे कोई याद हो आपको? नहीं, हमें कोई ख़ास नहीं रही। यहाँ पर जो दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री, अफसर और चीफ मिनिस्टर वगैरह की के साथ आपके कैसे रिलेशन रहे? उनके यहाँ आना जाना, शादी ब्याह, बर्थडे? एक आध भार्गव साहब थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके साथ अपने थे अच्छे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। नहीं, बाकी ये सब जो चीफ मिनिस्टरों के यहाँ बड़ी बड़ी ऐसे ओकेजन्स पे इंडस्ट्री के लोग बुलाए जाते हैं, पार्टियाँ होती हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस आपका? नहीं, हमने कोई खास ज़्यादा नहीं हुआ, एक आध दफ़ा बस दिल्ली में जब कॉन्फ्रेंस थी तो चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनको बुला लिया था अपने चीफ गेस्ट बना के। कौन? उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, जो वहीं रहते थे, फिरोज शाह रोड पे, क्या नाम था याद नहीं। तो उनको भी बुलाने के लिए अपने भार्गव साहब MP थे, उनको पकड़ के ले गए उनके यहाँ, लाल खुराना के यहाँ, कि साहब एक फंक्शन है हमारा, जरूर आइएगा। उनको इनवाइट किया, वो आ गए। अच्छा, आप यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस की बात कर रहे थे, वहाँ पर क्या खाने में क्या ऐसा अच्छा? नहीं, एक तो वहाँ पर बड़ी मशहूर डिश थी फ्राइड फिश और चिप्स, अच्छा। वो उस वक्त काफ़ी मशहूर थी। वेजिटेबल कटलेट वगैरह वो सब हमें तो काफ़ी अच्छे लगते थे। आप वैसे वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन? हाँ, 90% वेजिटेरियन। लेकिन पहले कुछ नॉन वेजिटेरियन शौक से खा लिया करते थे? हाँ, जब तक हमारे एक दो दोस्त थे, वो यंग, इस कॉलेज डेज के, मतलब वही 25-30 साल के थे, तो खा लेते थे वहाँ जाके। तब तक हम सिगरेट भी पीते थे। अच्छा, और शराबें? शराबें तो अभी भी एक आध पैक चलता है, ज़्यादा नहीं चलता कभी भी। जी जी। वो तो डिसिप्लिन का मामला है, क्योंकि हमारे एक दोस्त की एक बात कहानी है, हमें याद है कि वो इंडिया में जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज़ है, वो साहब जो है मुझसे भी उम्र 2 साल बड़े हैं, वो उसके डायरेक्टर हैं। और वो इंस्टीट्यूट का जो काम है कि अमेरिका से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी वो देखभाल करते हैं। उनके ऑफिस हैं मद्रास में, और कहीं कहीं दिल्ली में भी हैं, काफ़ी बड़ा ऑफिस, तो उनकी देखभाल करते हैं वो। तो एक दफ़ा अच्छा, अमेरिका के भी 3-4 चक्कर लगते रहते थे, और हम लोगों के भी यंग एज के दोस्त हैं, मतलब अगर वो 90 साल के हैं तो हमारी उनकी जान पहचान 70 साल की उम्र से है। तो अमेरिका गए हुए थे, उनको वहाँ पे हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल में रहे 1 महीना। हमारा घर था उस वक्त ग्रेटर कैलाश में, उनका था कालकाजी में, और हमारा ऑफिस था ओखला में। तो हमारा घर और प्रेस के बीच में हो गया उनका मकान। तो एक दिन हम शाम को
हमने कहा यार वो तो आ गए होंगे, चलो ज़रा देखें उनका क्या हाल है। तो हम उनके यहाँ चले गए। तो भाई 2 पैक बना के लाए, एक अपने लिए एक हमारे लिए। अब मैंने कहा तेरे को डॉक्टर मना नहीं किया, ऐसे ही हम बात करते थे। अब तेरे को डॉक्टर ने मना नहीं किया। तो अपने रिकॉर्ड में से डिस्चार्ज समरी निकाल के ले आया जो हॉस्पिटल से मिली थी अमेरिका में। तो उसमें लिखा हुआ था 1 to 2 पैक्स ए डे विल हेल्प। हाँ। तो कहते देखो पढ़ लो। तो हमारा भी एक्सेस कभी नहीं हुआ, जो एक्सेस वाले दोस्त हैं सब छोड़ दिया हमने। अच्छा, आप खुद कुछ पका भी लेते हैं? कुछ पका नहीं, सकते हम हैं? पका वगैरह ऑमलेट बना सकते होंगे, चाय बना सकते होंगे, मतलब मैगी, मतलब रोटी बना सकते हैं आप? नहीं, रोटी नहीं बना सकते? आमलेट कभी नहीं बनाया हमने, हाँ। बनाया नहीं हमने। अच्छा, कुछ भी मतलब जैसे कभी अकेले रहना पड़े या पड़ा, कुछ पकाने मन किया तो कुछ पकाने का कुछ हमने नहीं? कुछ नहीं किया। कोशिश भी नहीं की? मतलब ब्रेड ही रख दें तवे पे, थोड़ी जल जाए, थोड़ा ऐसा कर लें? कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी और शौक भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने बनाया नहीं कभी। नहीं। चाय? हाँ, चाय तो कहीं बना, लेकिन अब वो भी नहीं बनाते। अच्छा, अब तो आपका काम, आपके पुत्र संदीप देख रहे हैं आपका बिजनेस, आप और आपके तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं जो अब धीरे धीरे इस काम में शायद उतरेंगे। हाँ, नहीं, एक तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, दूसरा वाला नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेगा हमें। हाँ, तो लेकिन ये जो बेटे और पोतों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं ये बताइए। उनसे क्या शिकायतें हैं आपको? अपने बेटे से क्या शिकायत है? अच्छी बातें तो सब लोग कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात जो आप अपने बेटे के लिए कहना चाहें, जो वो इंस्पायर हो, अपने साथ रखे। आप तो कहते ही होंगे, लेकिन यहाँ हमारे सामने कहिए जिससे। नहीं, कभी मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कोई आपस में डिफरेंसेस या कभी एक दूसरे को शाउट करना या कुछ कहना नहीं होता कभी भी, नेवर। फिर भी मतलब होता है कि ये 2 कमियां अगर तुम ठीक कर लो तो तुम्हें ज़िंदगी में कामयाब आदमी हो जाओगे। ऐसे मेरे हैं, कभी हम लोगों की बात नहीं हुई। और पोते के बारे में कहिए, ग्रैंड चाइल्ड के बारे में, हर्ष के बारे में कुछ कहिए। नहीं, इसके बारे में ठीक है, अपने जैसे होते हैं नॉर्मल फैमिली में। हाँ, हमारे यहाँ ना तो कोई ज़्यादा बहुत एम्बिशियस है, ना कोई ज़्यादा कोई डिज़ायर वाली बात हो या ज़्यादा कोई चाहत हो, बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब जो देश में अभी आजकल बहुत, अब देख रहे होंगे किसान वहाँ बैठे हुए हैं, आंदोलन हो रहा है, कुछ कुछ हलचल बनती रहती है टीवी पे, ये सब पे शायद आप देखते होंगे। तो और आपने पिछला भी दौर बहुत देखा हुआ है। अभी देश किधर जा रहा है, कुछ क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो थोड़ा बहुत लीडर के साथ में चेंज होता रहता है। जैसे लीडर आते हैं वैसे देखिए सभी कैटेगरी के आदमी होते हैं, हर एक जगह। कोई अपने खाने पीने वाला होता है, कोई अपने होता है, लेकिन आज के दिन सब एक्सपोज हो जाते हैं बड़ी जल्दी। आज के दिन पहले लीडरशिप वगैरह, ये चीफ मिनिस्टरशिप जो पहले आज से 20 साल 25 साल पहले, अपने आज के दिन कम है, बहुत कम है। और आपके जैसे मैंने आपके बेटे की बात की, आपकी बहू भी अभी तो आपके साथ ही, बहू को आपने कैसे बदलता हुआ पाया? क्योंकि वो तो एक पराए घर से आई थी और वो एक कारोबार में परिवार का हिस्सा बन गई। कैसा आपने? देखिए क्या है कि क्या मिला यहाँ सीखने के लिए, क्या मिला? अगर आपका है काम करने का मूड और काम करने का है तो
सीख भी लेते हैं, सीख जाते हैं। नहीं, जैसे आप देखते हैं कि उनका गुंजन का जैसा लगन और डेडिकेशन एक काम में लगा रहता है, वो तो आपके सामने ही है। तो क्या आप कैसे रिएक्ट करते हैं इस बात पे? नहीं, रेट के अपने काम करो, भाई जो ठीक लगता है करो, जो गलत कर रहे हो बता दो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होता है ये काम, और क्या होता है। अब कोई क्लास में पढ़ाना तो है नहीं कि आप पढ़ाइए, क्लास में जाके बैठिए बताइए, वो तो होता नहीं है। पढ़े लिखे आजकल सभी लोग हैं। तो ठीक है मनमोहन जी, हम लोग अब बातचीत ख़त्म करेंगे। ये जो मुन्ना, जो आपकी माँ या दादी आपको कहा करती थी, ये 15 अगस्त 26 जनवरी के देश आज़ाद होने के मौक़ों पर इसके अंदर कैसा बचपन में भाव आया करता था? कुछ याद है आपको, झंडे लेकर प्रभात फेरियां या क्या? कुछ खास नहीं था। मैं कभी किसी इस तरह के ऐसे अटैच नहीं रहा। जनसंघ से ज़रूर रहता था, वो भी आरएसएस से, कि वहाँ पे गलत काम नहीं करने देते किसी को, आरएसएस में भी। और कभी किसी से मैं अटैच ही नहीं रहा। अभी भी आपका अटैचमेंट है जनसंघ और आरएसएस के लोगों से? क्योंकि अब तो वो सब भी पावर में आ गए, और जब पावर में कोई आ जाता है तो फिर करप्ट ही ज़्यादा होता है। तो कैसा है अभी आपका रिश्ता? अब तो हम, अब टू बी वेरी फ्रैंक, अपने सेक्लूडेड हो गए, अपने काम से भी रिटायर हो गए, जैसे पॉलिटिक्स में से भी रिटायर हो गए। अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हम लोग ये बातचीत ख़त्म करेंगे मनमोहन जी। कोई और बात हो तो कहिए, फिर हम लोग। नहीं, आप बताइए, आपका आप अपना रिएक्शन बताइए। मुझे तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एक ऐसी जीवन यात्रा, कहाँ एक छोटे से 60 रुपए की नौकरी से शुरू करने वाला आदमी कहाँ पहुँचा, ये तो बहुत एक इंस्पिरेशन है किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी उद्यमी के लिए। आप एक उदाहरण की तरह हैं, हम समझते हैं। शुरू तो हमने 30 रुपये महीने से करी थी जी, 30 रुपये महीने से। बस हमें ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हमने सर्विस करी, जो भी किया, कभी अनफेयर बात नहीं करी, गलत बात नहीं करी, कभी भी, नेवर। और मौके की बात है, ये तो हम ज़्यादा सर्विस करते थे, रात को 9 बजे प्रेस में बुलाया उन्होंने, हम पान की दुकान पे गए कश्मीरी गेट में, रीड सिनेमा के बाहर। तो वहाँ भीड़ थी 8-10 आदमियों की, शाम को 9 बजे के टाइम। हमको सिगरेट पीने की आदत अपने दोस्तों के साथ पड़ गई थी। तो हम दुकान पे, भीड़ थी 5-6 जनों की, हमने कहा आप भी यहाँ इंसिस्ट हो गए, टाइम खड़े हो गए तो आदत पड़ जाएगी, चलो। हमें नहीं पीनी सिगरेट, आज तक सिगरेट नहीं पी हमने। उस इंसिडेंट के बाद आज तक नहीं पी हमने। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार है आपका मनमोहन जी। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और हम लोग ये सब बातें कर पाए। जो आने वाले जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, ऐसे लोग उद्यमी जो आपके जीवन से सीखना चाहते हैं, हम समझते हैं उनको बहुत कुछ सीखने को, प्रेरित होने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत आभार। चलिए, अब आप बहुत कुछ सीखा हमने भी आपसे, बहुत बहुत मज़ा आया हमें भी। तो बहुत 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 शुक्रिया। महत्वपूर्ण व्यक्तियों और उद्यमियों के इस कार्यक्रम श्रृंखला में आज हमारे साथ थे कुमार प्रिंटर्स के संस्थापक और प्रोप्राइटर मनमोहन कुमार भार्गव। कार्यक्रम का ये सिलसिला जारी है और जल्द ही मुलाकात होगी कि ऐसी ही किसी नई शख्सियत, एक नई विभूति के साथ, जो कि जीवन में प्रेरणा लेकर आते हैं, जो राह दिखाते हैं। नमस्कार।